Welcome. Hope you are enjoying learning with us. Today we are going to discuss lesson number 5 Princess September. आज का हमारा विषय टॉपिक है lesson number 5 Princess September. The king of Siam had 9 daughters. The queen used to find it difficult to remember so many names. So the king named his daughters after the name of the months of the year. Therefore, the eldest was called January and the youngest was named September. The king had a peculiar habit of giving gifts to his daughters on his birthday. One year, he gifted a green and yellow parrot in a golden cage to each of his daughters. The daughters loved their gifts and were proud of their parrots. They taught their parrots to say, God save the king and Pretty Polly in 7 languages. सियाम का राजा, उसकी 9 बेटियां थी, 9 बेटियां थी। रानी को उन 9 बेटियों के नाम लेने में कंफ्यूजन होती थी, इसलिए राजा ने साल के महीनों के नाम पर उन बेटियों के नाम रख दिए। सबसे बड़ी बेटी का नाम जनवरी और सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर रखा गया। राजा की एक पेक्यूलर हैबिट, एक अजीब सी आदत थी कि वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स दिया करता था। एक साल उसने अपनी बेटियों को एक ग्रीन और येलो कलर का पैरेट एक सोने के पिंजरे में डालकर गिफ्ट किया। सभी बेटियों को अपनी गिफ्ट्स बहुत पसंद थी और वो उनके सबके पैरेट्स जो है तोते गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली 7 भाषाओं में कह सकते थे। वन मॉर्निंग व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, she saw her parrot lying dead at the bottom of its golden cage. The princess burst into a flood of tears. Her maid of honor didn't comfort her. The queen found all this nonsensical and ordered the maid of honor to put the princess in her bed without serving her any dinner. एक दिन सुबह सुबह प्रिंसेस सितंबर देखती है कि उसका तोता जो है गोल्डन केज में मरा पड़ा है, तो वो फूट फूट कर रोती है और जो उसकी सहायिकाएं होती हैं वो उसको कोई कंफर्ट नहीं करती हैं और उसकी मदर जो क्वीन है वो भी इस मरे हुए तोते के ऊपर रोने को बुरा नॉनसेंसिबल कहकर छोड़ देती है और बिना कुछ खाए पिए ही उसको बेड पर सोने के लिए भेज देती है। While the princess lay in her bed crying in grief of her dead parrot, a little bird came hopping into her room. As the princess saw him, he began to sing a beautiful song about the lakes, the trees, and the willow, and so on. When he had finished singing, the princess was not crying anymore, and she had forgotten that she was hungry. The little bird asked her to take him in place of the parrot. Princess September अपने बेड में लेटी हुई थी और रो रही थी। तभी एक छोटा बर्ड उसके कमरे में उछलता हुआ आता है। प्रिंसेस उसको देखती है और वो देखते ही जो है एक सुंदर गीत गाना शुरू कर देता है। जब गाना खत्म होता है तो प्रिंसेस को लगता है कि अब वो अपना दुख भूल गई है और उसको ये भी भूल गया कि उसने खाना नहीं खाया है, उसको भूख लगी है। लिटिल बर्ड ने उसको पैरट की जगह रखने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विद ग्रेट डिलाइट द प्रिंसेस शोड द लिटिल बर्ड टू ऑल आवर सिस्टर्स। फॉर ईच ऑफ द सिस्टर्स द बर्ड sang a new and beautiful song. Then the princess showed her new friend to the king and the queen. The king was delighted to see the bird, for the bird sang beautifully and was unlike the parrots of 8 sisters who just knew how to say God save the king and Pretty Polly. अगली सुबह प्रिंसेस सितंबर ने वो अपना नन्हा सा पक्षी सभी को दिखाया, राजा को भी, रानी को भी और अपनी बहनों को भी। और वो छोटा पक्षी उन सभी तोते से अलग हर प्रकार के नए गाने गाता था। Seeing the king speaking favorable of little bird and hearing him sing beautifully, the 8 sisters grow jealous of September. The sisters decide to plan a strategy to get rid of the little bird. They made an offer to September to give their pocket money in helping September to buy a new parrot. When September refused, they questioned the freedom of the bird by pointing out to his absence every how and then, making September insecure. They also advised her not to take any risks and put the bird in the cage. जब राजा ने उस पक्षी की बहुत तारीफ कर दी तो सभी 8 बहनें उस सितंबर से ईर्ष्या करने लगी और उस छोटे पक्षी से छुटकारा पाने के नए नए तरीके आजमाने लगी। सभी 8 सिस्टर्स ने सितंबर को अपना पॉकेट मनी देकर नया तोता खरीदने के लिए ऑफर किया, परंतु सितंबर ने इनकार कर दिया और फिर अंत में उन्होंने सितंबर को सलाह दी कि उस छोटे पक्षी को केज में पिंजरे में बंद कर दिया जाए। On realizing that the bird had been away too long, September begins to worry about the safety of her bird. She fears hawks and snakes might have harmed it. She also begins to fancy ideas like the bird might have forgotten her and became
a pet to someone else. All these ideas greatly disturb her. When the bird returns on being asked behind his delay, the bird, unknowing of the circumstances, honestly tells her that his father-in-law was giving a party and he intended not to come back. Hearing this, September makes up her mind and put the bird in the cage. Initially, the bird thought that September was putting him temporarily in the cage, but when he realized he was being caged forever, he becomes very unhappy. काफी समय तक जब उसका पक्षी वापस नहीं आया, सितंबर को उसकी चिंता होने लगी। उसको लगा कि उसको रास्ते में किसी अन्य पक्षियों ने किसी तरह की हानि ना पहुंचा दी हो, और उसके दिमाग में ये विचार भी आने लगा कि कहीं वो उसको भूल तो नहीं गया। इस तरह के आइडियाज ने उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही छोटा पक्षी वापस लौटा और उसको देरी के बारे में पूछा गया, तो उसने बता दिया कि उसके फादर इन लॉ ने एक पार्टी अरेंज की थी और उसका मन नहीं कर रहा था कि वो वापस आए। ये सुनकर सितंबर ने उसको एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया, और पहले तो पक्षी को लगा कि वो कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में उसे पता चला कि वो सदा के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया। इससे वो बहुत उदास हो गया। The bird could not sing any further as he was unable to feel the beauty of lakes, trees, willows and so on. He also refused to have food. The next morning he lay lifeless at the bottom of the cage. September thinks that the bird had died. The bird tells the princess that he could not sing if he cannot fly, and if he doesn't sing, he would die. September feels very sorry for what she had done, and therefore she let the bird free. The bird promises that he loved her and would keep coming to meet the princess. The princess, though sad, puts the bird happiness on priority and let the bird free forever. She always kept the windows of her room open for the bird to come whenever he pleased to. अब छोटे पक्षी को क्योंकि पिंजरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के झीलों, वृक्षों, कुंजों के बारे में गीत गाने नहीं गा सकता था। उसने खाना भी बंद कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सितंबर को लगा कि उसका पक्षी डेड हो गया है, मर गया है। पक्षी ने प्रिंसेस को बताया कि जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो बाहर नहीं घूमेगा, तब तक वो गाना नहीं गा सकता है, और अगर वो नहीं गाएगा तो वो मर जाएगा। सितंबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस पक्षी को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। बर्ड ने सितंबर से वादा किया कि वो उसको बहुत चाहता है और वो जब भी चाहेगा वो आप उससे मिलने के लिए आएगा। प्रिंसेस जबकि उदास थी, फिर भी उसने पक्षी की आज़ादी को, उसकी खुशी को, हैप्पीनेस को प्रायोरिटी पे रखा और उस पक्षी को फ्री कर दिया। और वह हमेशा अपने घर की विंडोज, खिड़कियों को हमेशा खुला रखती थी ताकि वो पक्षी जब कभी भी चाहे उसके पास आ सके। Dear students, this is all about the summary of the lesson. I hope that you have followed the summary. Now we will discuss some question answers about the lesson. Dear students, आइए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग गिव टू ईच ऑफ हिज डॉटर्स ऑन हिज बर्थडे? अपने जन्मदिन पर एक बार राजा ने अपनी बेटियों को क्या दिया था? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक चूज करना है। ऑप्शंस हैं अ व्हाइट एलिफेंट, अ ग्रीन पैरेट इन गोल्डन केज, अ रेड एंड ब्लू पैरेट इन अ गोल्डन केज, अ स्पैरो इन द गोल्डन केज। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड है, अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन cage. Question number 2. In how many different Oriental languages could the parrot say God save the king and Pretty Polly? God save the king and Pretty Polly कितनी भाषाओं में वो पैरट्स कहा करते थे? तो इसमें 15 है, 7 है, 10 है और 5 है। तो आपको जैसे समरी में बताया गया है तो 7 लैंग्वेजेस आपका आंसर आएगा बी। Why was the Princess September crying uncontrollably? प्रिंसेस सितंबर जो है इस तरह से क्यों रो रही थी? ऑप्शंस देखिए। Because she was angry with the queen, वो क्वीन से नाराज थी। बिकॉज शी वॉज हंग्री, उसको भूख लगी थी। बिकॉज हर सिस्टर मेड फन ऑफ हर, उसकी सिस्टर्स ने उसका मजाक उड़ाया था। बिकॉज हर पैरट डाइड। चौथा ऑप्शन है कि उसका पैरट मर गया था, तो हमें इसमें डी ऑप्शन लेंगे, बिकॉज हर पैरट डाइड, उसका पक्षी तोता मर गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द मेड्स ऑफ ऑनर पुट द प्रिंसेस टू बेड एज क्विकली एज दे कुड? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द मेड्स ऑफ ऑनर पुट द प्रिंसेस टू बेड एज क्विकली एज दे कुड? बहुत जल्दी में उसको बेड पर उन्होंने मेड्स ऑफ ऑनर ने उसको सितंबर को भेज दिया था। क्या कारण था कि उसको जल्दी से जल्दी उसको बेड पे भेजा जा रहा था? दे वर समन्ड बाय द किंग, उनको राजा ने बुलाया था। दे हैड टू वर्क टू द प्रिंसेस सिस्टर आल्सो, दूसरी बहनों के लिए भी उनको कार्य करना था। दे हैड टू मेक सुपर, उनको खाना बनाना था। या दे वांटेड टू गो टू पार्टी, या वो किसी पार्टी में जाना चाहते थे। तो चौथा आपका जो है डी आंसर आएगा, दे वांटेड टू गो टू द पार्टी। हु केम टू बीफ्रेंड द प्रिंसेस व्हेन शी वाज अलोन, सैड एंड लोनली? जब प्रिंसेस बिल्कुल अकेली थी, उदास थी और
और बिल्कुल एकांत में बैठी थी, तो उसको हेल्प करने के लिए, फ्रेंड करने के लिए कौन आया था? द लिटिल बर्ड, पीकॉक, पिजन और व्हाइट एलिफेंट। तो आंसर ए आएगा, अ लिटिल बर्ड। व्हाट डिड द बर्ड टू डू टू एंटरटेन द प्रिंसेस? व्हाट डिड द बर्ड डू टू एंटरटेन द प्रिंसेस? प्रिंसेस को खुश करने के लिए बर्ड क्या करता था? द बर्ड स्टार्टेड डांसिंग, बर्ड डांस करता था। दूसरा देखिए, बर्ड चैटेड विद द प्रिंसेस, उससे बात करता था। तीसरा, बर्ड सैंग अ लवली सॉन्ग। और फोर्थ है, द बर्ड टोल्ड फनी स्टोरीज टू द प्रिंसेस। तो आप बताइए, ये इसमें सी आंसर आएगा, द बर्ड सैंग लवली सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8 प्रिंसेस के, क्वेश्चन नंबर 7 इज द 8 princesses, question number 7, the 8 princesses came up with the idea and bought Princess September a gift. What was that gift? A Siamese cat, a lovely green and yellow parrot, a white elephant, a lovely goldfish. एक सियामीज कैट लेकर आए थे, वो ऑफर दिया था उन्होंने, या एक लवली ग्रीन येलो पैरेट का ऑफर दिया था, या व्हाइट एलिफेंट का, या फिर एक गोल्ड फिश का। तो इसमें आंसर जो है आपका बी आंसर आता है, ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। क्वेश्चन 8, डिड प्रिंसेस सितंबर एक्सेप्ट देयर गिफ्ट? क्या उनकी बहनों की गिफ्ट उसने सितंबर ने एक्सेप्ट की थी? तो इसमें आप ये लिखेंगे, शी सेड दैट शी वुड एक्सेप्ट इट लेटर। बी देखिए, नो, यस और कांट से। तो इसमें हम बी आंसर देंगे, नो, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, नो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड Princess September do after her little friend came back from father-in-law's place? जब अपने father-in-law से मिलकर वो छोटा पक्षी उसका वापस आया, तो सितंबर ने क्या किया था? Princess September tied the bird to the windowsill. The princess killed the bird. The princess put the bird in a cage. Princess shooed the bird away. तो इसमें पहला ये है कि उसने उसको बांध दिया था। दूसरे में बता रहा है कि वो उसने उसको मार दिया था। तीसरा देखता है ये कि उसको केज में, पिंजरे में बंद कर दिया था। और चौथा देखिए, प्रिंसेस शूट, उसको भगा दिया था। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे सी, द प्रिंसेस पुट द बर्ड इन द केज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रीजन डिड द प्रिंसेस गिव टू द बर्ड फॉर कैप्चरिंग इट इन ए केज? पिंजरे में बंद करने का प्रिंसेस ने क्या कारण बताया था? देयर वर डॉग्स हंटिंग आउटसाइड, कि बाहर हंटिंग डॉग्स घूमते रहते हैं। देयर वाज अ स्नेक इन दी ऑन द लूज, एक सांप बाहर घूमता है। देयर वर कैट्स प्रॉलिंग आउटसाइड, बाहर बिल्लियां घूमती रहती हैं। ईगल्स वर प्रेइंग, और कुछ ईगल्स या चीलें बाहर घूमती रहती हैं। तो जो रीजन बताया था उसको केज में बंद करने का, वो था कि बाहर कैट्स, बिल्लियां घूमती रहती हैं, प्रॉलिंग आउटसाइड। व्हाट डिड द बर्ड वांट? बर्ड क्या चाहता था? अ ह्यूज केज इन द गार्डन, बड़ा पिंजरा चाहता था। डिलीशियस फूड चाहता था, फ्रीडम चाहता था, या गोल्डन केज चाहता था? तो हम बताएंगे कि पक्षी को फ्रीडम चाहिए था। जब फ्रीडम में रहता है पक्षी, तो विभिन्न प्रकार के गाने गाता है। तो फ्रीडम आंसर आएगा सी। व्हाई डिड द बर्ड डिसलाइक द आइडिया ऑफ बीइंग टेकन आउट इन द गार्डन इन ए केज? बगीचे में जाना उसको पसंद क्यों नहीं आता? अगर उसको पिंजरे में, बगीचे में ले जाया जाए, तो उसको वो डिसलाइक करता है। इसका कारण क्या था? द बर्ड वाज टू टायर्ड, वो बहुत थका होता था। बिकॉज द व्यू वाज डिफरेंट फ्रॉम द बिहाइंड द बार्स, उसको बार्स में से, उसमें से, पिंजरे में से बाहर का दृश्य सही नहीं लगता। द बर्ड वाज टू लेजी, वो बहुत लेजी था। या बर्ड वांटेड टू बी टू द बीच इंस्टेड, वो बीच पर जाना चाहता था। लेकिन इसका आंसर आएगा आपका बी आंसर, कि उसको जो है व्यू है वो पिंजरे में से अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 13, वाज द बर्ड अनहैप्पी विद प्रिंसेस सितंबर व्हेन शी पुट हिम इन हिज केज? कि जब उसको, पक्षी को पिंजरे में डाल दिया गया, कि क्या वो पक्षी उदास था, अनहैप्पी था? तो इसे हम कहेंगे ऑन द कंट्री ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, पहले वो ज्यादा खुश रहता था। कांट से कुछ नहीं कह सकते, यस, हाँ और नो। तो हम इसमें यस कहेंगे कि हाँ, वो उससे अनहैप्पी था कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट? पक्षी ने कैसा रिएक्ट किया था, कैसा प्रतिक्रिया दी थी जब उसको केज में बंद कर दिया गया? ही स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया। ही रिएक्टेड बाय नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, उसने खाना पीना बंद कर दिया। ही वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज इफ डेड, ऐसे लेटा रहता जैसे वो मरा हुआ हो। तो इसमें सब जो है सारी बातें आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द अदर princesses when Princess September told them about the bird? They felt sorry for the bird. They wanted the bird to be free. They asked September to release the bird. They thought that the bird should die if he does not get used to the cage. Answer is, they asked September to release the bird. Did Princess September let the bird die? इसमें ऑप्शन देखिए, yes, no, can't say, she did not want the bird to die but it died. क्या प्रिंसेस सितंबर चाहती थी कि बर्ड मर जाए? नो। तो इसका बी आंसर आएगा, नो। डिड द प्रिंसेस फ्री द लिटिल बर्ड एट लास्ट? क्या अंत में बर्ड को फ्री छोड़ दिया गया? इसमें लिखा है शी किल्ड द बर्ड इन द एंड, कांट से, यस, नो। तो इसमें सी आंसर आएगा, यस, उसने उसको
को फ्री कर दिया था, छोड़ दिया था। Why did the Princess September grow up to be beautiful? Because she slept with her open windows waiting for the bird to come. दूसरा देखिए, because she did a lot of makeup, because she focused on her looks, she wasn't beautiful, she grew up to be ugly. Why did Princess September grow up to be beautiful? Because she slept with her window open waiting for the bird to come. B is because she did a lot of makeup, because she focused on her looks, she wasn't beautiful, she grew up ugly. वो अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल के रखती थी ताकि पक्षी अंदर आ जाए। वो बहुत सारा मेकअप करती थी, ये अपनी लुक्स पे फोकस करती थी और वो ब्यूटीफुल नहीं थी। तो हमें ए आंसर लगाना है, इसमें ए आंसर आएगा। प्रिंसेस सितंबर मैरिड द किंग ऑफ। प्रिंसेस सितंबर की शादी किससे हुई थी? सियाम के राजा से, चाइना के राजा से, कंबोडिया के राजा से, थाईलैंड के राजा। तो हमें आंसर इसमें लिखना है सी आंसर, किंग ऑफ कंबोडिया। तो यहाँ कंबोडिया आएगा। प्रिंसेस सितंबर वॉज कैरिड ऑन एंड टेकन ऑल द वे टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड। शादी के बाद उसको प्रिंसेस सितंबर को कैसे ले जाया गया था, किस तरीके से ले जाया गया था? अ यूनिकॉर्न, अ कैमल, अ बिग व्हाइट एलिफेंट, अ हॉर्स। तो इसमें जो आंसर आएगा वो बिग व्हाइट एलिफेंट आएगा। एज द अदर प्रिंसेसेस ग्रू अप टू बी रादर अगली दे वर मैरिड टू। दूसरी बेटियां 8 प्रिंसेसेस जब बड़ी हुई तो वो बहुत अगली हो गई, क्रूप हो गई और उनकी शादियां हुई किससे? किंग्स काउंसलर्स के साथ। डी आंसर आएगा। इसमें ये भी है किंग्स रिलेटिव, किंग्स मिनिस्टर्स, किंग्स सर्वेंट्स, और चौथा जो है डी है ये किंग्स काउंसलर। राज दरबारियों से उनकी शादियां कर दी गई। Dear students, this is all about the lesson and I hope that you have enjoyed it very much. Thank you very much.